Hello, and we have a very special episode. We are at the Duke Badminton Academy with head coach Mr. Vishal Chandani, who's a National Games bronze medalist. Badminton में start कैसे किया आपने? Individual sport kind of attracted me कि अपने दम पे खेलना है. So I think Chirag, it's time to see and sir बताएंगे हमें do we have a career in this sport कि हम कितने से हारेंगे? देखते हैं, we'll see. So guys, at Duke Academy we'll be having a match. Nice one. Mine. Yes, भाई. Point मिल गया. इस बार के ओलंपिक्स में देख के are you happy जो हमारे candidates हैं मतलब? See, Sindhu is obviously a big contender. The other players are not playing that good. Doubles में Satvik and Chirag are a very good prospect. They surely will get us the medal. I'm sure about that. बच्चों से खेलने के बाद बुड्ढों को हराने की कोशिश कर रहे हैं लोग. मैं अभी भी बोल रहा हूँ मिट्टी ले आओ, मिट्टी मारते आते हैं. अब देख, अब मैं कैमरे पे अब जीतूंगा. अब डन है भाई. ऋषभ को देख के लगता है he's played some rackets for sure. You need a lot of work. Yes. Yes. I thought it was everything sports podcast. Hello, and welcome back to the Everything Sports podcast brought to you by Blue Tick Studios. And we are at the Duke Badminton Academy with head coach Mr. Vishal Chandani, who's a National Games bronze medalist. Yes. So Vishal sir, how's everything going? कैसा चल रहा है academy? It's been good. We started around 5 years back in 2019. My cousin Mr. Suresh Anglani came up with this concept of a good academy for Indore. We started in 2019. It's been going great since then. Sir, so before 2019, what were you doing? Like, were you like born and brought up in Indore only? Yeah, I was born in Indore. I studied in Indore itself. Then my schooling from Daly College. Then I got into badminton at the age of 14. Started playing. Played for about 30 years. Then last 5 years I've been into coaching now. So, sir, badminton में start कैसे किया आपने? Like आपको और कोई sports में भी interest था as a kid या? हाँ, मैं क्रिकेट खेला हूँ. क्रिकेट एमपी के लिए भी 2 साल खेला हूँ. Okay. But my dad took me to. He used to play badminton every day. उनके साथ मैंने नेहरू स्टेडियम जाना चालू करा 1990 के आसपास. तब शायद इंदौर में सिर्फ 2-3 कोच होते थे. आज तो बहुत अकेडमीज हैं, काफी कोच हैं. पर तब सिर्फ इंदौर में 2 ही बैडमिंटन कोच होते थे नेहरू स्टेडियम में. वहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया. और एक वो इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलने का जो थ्रिल होता है कि हारना जीतना सब आप पे डिपेंड करता है. यू आर नॉट डिपेंडेंट. क्रिकेट में आप टीम पे डिपेंड करते हो कि टीम कैसे परफॉर्म कर रही है. सो दैट इंडिविजुअल स्पोर्ट काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी कि अपने दम पे खेलना है. दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट. So dominantly, were you into single badminton matches? Like इसमें 2 चीजें होती है, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक मिक्स होता है. तो आपका फोर्टे क्या था? आपकी स्पेशलिटी क्या थी? इनिशियल 10-15 साल till I was about 25-27 मैं सिंगल्स ही खेला. And then I switched to doubles. Played doubles with Mr. Prakash Dhakar, who was state champion for 5 years. Mixed doubles में भी state finals खेला 2 बार. So once you get a little older, you kind of switch to doubles. Initially सब लोग singles से ही start करते हैं. So, sir, more about your history. Like, was your dad also like a state level player or something? Yeah, उन्होंने state level खेला है, but वो अपने age group में है, मतलब masters में, veterans में. Okay. 40 plus, 45 plus. In those age groups, he was the state champion. So, family से always backing था. हाँ, family का हमेशा अच्छा support था. My dad's been a sportsman, हमेशा sports खेलते रहे. Family support हमेशा था. That is very important. कोई भी sport, किसी भी बच्चे को अगर professionally sport खेलना है, तो family support is very important. तो सपोर्ट से मेरा एक और क्वेश्चन है कि जहाँ पे हम लोग इंडिया की बात करते हैं, क्रिकेट में जो हायरार्की बनी हुई है स्टार्टिंग से लेके बाय द टाइम लाइक आप डिस्ट्रिक्ट खेलो, स्टेट्स खेलो, नेशनल्स खेलो, एक प्रॉपर हायरार्की बनी हुई है जिसकी वजह से काफी प्लेयर्स को प्रमोशन भी मिलता है. और जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल हो गया, आईपीएल के साथ साथ एक बैडमिंटन टूर्नामेंट भी था जो कि जियो ने इनिशिएट किया है. तो आपको उसके बाद लग रहा है कि बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट बड़ा है या फिर अभी भी मतलब चालू हुआ पर वापस अब ठंडा हो गया है? नहीं, बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट तो बहुत ग्रो हुआ है लास्ट 10-12 इयर्स में. किन टर्म्स में? सी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर्स इन इंडिया. आज से शायद 15 साल या 18 साल पहले वर्ल्ड लेवल में आपको टॉप 20 में एक भी इंडियन नहीं दिखता था. बट लास्ट 15-18 इयर्स, 10 इयर्स आपको टॉप 10, टॉप 5, इवन बीइंग वर्ल्ड नंबर 1 इंडियंस बने हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 रहे. वर्ल्ड नंबर 1, श्रीकांत वर्ल्ड नंबर 1 रहा है, सानिया's been there. That way, last 10-12 years में
द स्पोर्ट हैज ग्रोन अ लॉट। और एक कोई भी स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट। yes yes सो इफ अ पर्सन थिंक्स ही कैन मेक अ करियर आउट ऑफ द स्पोर्ट, तो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट ग्रो करेगा। तो क्रिकेट में लोगों के करियर रहते हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ। इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन नाउ। आप पूरा ध्यान दे बैडमिंटन सकते में हो। जब से प्रीमियर बैडमिंटन लीग स्टार्ट हुआ है, गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी, स्पॉन्सरशिप्स आई है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो स्पॉन्सर जो प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं। इसके कारण बैडमिंटन में भी काफी पैसा आया है और लोगों को अब अच्छी सिक्योरिटी मिले। पहले सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलते थे, व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, रेलवेज में जॉब मिल गया, LIC में जॉब मिल गया या स्टेट बैंक में जॉब मिल गया, दैट वाज द ओनली जॉब सिक्योरिटी यू हैड। बट नाउ प्राइज मनी भी अच्छा है, नेशनल्स में 10-10, 12-12 लाख का रैंकिंग का प्राइज मनी होता है, नेशनल में 20-30 लाख रुपीस प्राइज मनी होता है। तो दैट वे प्लेयर्स आर मोर सिक्योर्ड नाउ। बट सर जैसे टेनिस में एक पेस का भी एक हायरार्की बना हुआ है प्रॉपर, लाइक आप जितना आगे बढ़ते जाओगे टूर्नामेंट्स में उतना ज्यादा आप कमाते जाओगे, पर उसमें भी काफी डिस्पैरिटी आ जाती है लो लेवल के प्लेयर्स के लिए जो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनके लिए टूर पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा थ्रू आउट द ईयर। So that is the only reason कि काफी players ना अंडर 16, अंडर 18 लेवल के बाद खेलना बंद कर देते हैं। Then they switch off to studies, career। अगर आप देखेंगे तो अंडर 19 तक बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, उसके बाद 20, 30, 40% प्लेयर्स ड्रॉप ऑफ, तो उनको करियर बनाने को समझ में आई। अब बैडमिंटन में ज्यादा नहीं हो सकता, वी कैन नॉट रीच द टॉप, तो दिस स्विच। दैट वे सिक्योरिटी अभी भी कम है, बट स्टिल जो आज से 15 साल पहले हालत थी बैडमिंटन की, उससे बहुत बेटर है। ड्यूक एकेडमी का सर क्या फील है, क्या है ये, मतलब ये कैसे अलग है दूसरी एकेडमी से? यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो? इज इट जस्ट फॉर फिटनेस और इज इट टू गिव दोस growing up kids a competitive edge by your experience? See what we've done is हमने अलग अलग बैचेस बना रखे हैं। ठीक है। कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनको अपने बच्चों से फिटनेस के लिए भेजना है, ठीक है, क्योंकि स्कूल के बाद टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, तो वी गॉट डिफरेंट बैचेस। जिनको फिटनेस के लिए सिर्फ थोड़ा सीखने के लिए खेलना है उनके लिए अलग बैचेस हैं, जो प्रॉपर जिनको प्रोफेशनली स्टेट नेशनल लेवल खेलना है उनके लिए अलग बैचेस है, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। मॉर्निंग फिटनेस होती है, आफ्टरनून में कंडीशनिंग, कोड वर्क होता है, इवनिंग में स्ट्रोक प्रैक्टिसेस होती है। That's how we work. ओके सर पर एक क्वेश्चन, हाँ प्लीज। ये चाइना वाले ऐसा क्या कर रहे हैं सर बैडमिंटन में कि हमेशा टॉप पे रहते हैं? See, वहाँ पे एक तो बैडमिंटन इज अ वेरी ओल्ड स्पोर्ट, देयर बहुत सालों से डोमिनेट करते आ रहे हैं। वहाँ पे स्पोर्ट्स में सिक्योरिटी भी ज्यादा है, दे गेट देयर आर्मी जॉब्स एंड ऑल बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स आल्सो। हमारे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लोअर लेवल पे अब सपोर्ट स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट के, साइंस एकेडमीज है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन सब की एकेडमी, बिहार में बहुत बड़ी एकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। दे गिव प्लेयर्स फ्री स्टे, फ्री फूड, फ्री एजुकेशन और खेलना भी फ्री। सी बैडमिंटन इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। एक फेदर शटल का बॉक्स आता है अराउंड 16 to 1800 रुपीज, और ये प्लेयर जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल रहा है उसका 2 या 3 दिन में एक बॉक्स खत्म होता है। अच्छा, दिन में 3 शटल लगती है। अच्छा, 700 रुपए की शटल एक बच्चे को रोज लग रही है जो प्रोफेशनल लेवल पे फेदर शटल से खेलना चाहता है। एंड इन प्रोफेशनल लेवल के रैकेट्स के प्राइसेस दे अप्रॉक्सिमेटली वेरी फ्रॉम 3000 to 10,000 के। रैकेट तो फिर भी लंबा चलता है, आपका रैकेट 3 साल चल जाता है, 2 साल चल जाता है, बट शटल्स आपके दिन की 3 लगती है। एक गलत स्ट्रोक मारते हो ब्रांड न्यू शटल टूट जाता है। सो बैडमिंटन दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। ओके, सो बेसिकली, और इसमें सर लेकिन मैं जैसे ऑफ द कैमरा भी हमसे पहले बात कर रहे थे, जब एज होती है जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ओलंपिक्स में जब हम देखते हैं स्पेन हो गया, तो इन सब में सर सारे जो स्पोर्ट्स चालू होते हैं उस बाय द टाइम अ किड इज 7 और 8 उसकी प्रैक्टिस चालू हो जाती है। Exactly. उसका न्यूट्रिशन, उसका डाइट, उसका फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ चालू हो जाता है। बट इंडिया में कहीं ना कहीं वो चीज लेट आती है। आप गेमिंग पे ध्यान दे सकते हो, पर आपका डाइट और आपका जो मसल ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा लेट चालू होता है। सी मसल ट्रेनिंग तो कोच का काम है आपको करना, वो पेरेंट्स नहीं देख सकते। लाइक वी गिव अ किड मसल ट्रेनिंग, उनसे वेट से उठवाते हैं, बट सैंड बैग्स है, टायर्स है, उससे ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि यू डोंट सेंड लिटिल चिल्ड्रन फॉर योर वेट ट्रेनिंग इन द जिम। सी आप थोड़ा सैंड बैग्स यूज कीजिए, दूसरे तरह के वेट्स यूज कीजिए। बट न्यूट्रिशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि पेरेंट्स और इवन टू लॉट ऑफ एक्सटेंट कोचेस को भी सही न्यूट्रिशन पता नहीं है कि बच्चों को क्या न्यूट्रिशन देना, प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए। हमारे यहाँ पे फ्राइड फूड इज यस, बिग थिंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। या तो न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम।
एंड इन सारी चीजों में आप सॉफ्ट ड्रिंक और ये सब के लिए कैसे नजर रखते हो कि बच्चा सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं पी रहा है क्या? बच्चा मैं पी रहा सिर्फ था। बच्चा academy- मैं सिर्फ एकेडमी टाइम पे ध्यान रख सकता हूँ। एग्जैक्टली Once a kid goes home, उसके हाँ। बाद that is the parents you have to take care of. By एग्जैक्टली the way, ऋषभ मॉन्स्टर पीता हुआ गुस्सा है इधर खेलने जस्ट बिकॉज आई वाज थर्स्टी। सो सर व्हाट्स नेक्स्ट, लाइक अभी ओलंपिक्स आने वाला है बहुत ही जल्द, इस बार के ओलंपिक्स में देख के आर यू हैप्पी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं? मतलब See, Sindhu is obviously a big contender. The other players are not playing that good. Doubles में Satvik and Chirag are a very good prospect. They surely will get us a medal. I'm sure about that. व्हाट चेंज, मतलब इंडिया में ऐसा क्या चेंज हुआ है? इज इट बिकॉज वी आर फॉलोइंग कि बाहर की कंट्रीज क्या कर रही हैं ट्रेनिंग वाइज, एनालिसिस वाइज, या फिर कुछ और चेंज हुआ है? We are following something. See, when Gopi Chand won the All England tournament a few years back, he got a lot of government support. He set up his academy in Hyderabad, and there he started very professionally. बाहर के coaches hire किए, doubles के लिए doubles में Denmark is a very good country for doubles badminton. ओके वहाँ के कोचेस को हायर किया डबल्स पे ध्यान देने के लिए. चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया से सिंगल्स के कोचेस हायर किए. सो नाउ वी हैव अ वैरायटी ऑफ कोचेस इन इंडिया, इन हैदराबाद, जो आपको हर कंट्री की डिफरेंट ट्रेनिंग्स और स्किल सेट सिखा रहे हैं. सो नाउ द इंडियन किड्स आर लर्निंग व्हाट गोज ऑन द वर्ल्ड ओवर. सारे अलग कंट्रीज में किस किस टाइप का डिफरेंट ट्रेनिंग होता है, वो आज हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी हर बच्चे को दे रही है जो वहाँ पे खेलता है. आप जितने भी टॉप प्लेयर्स देखें, एक गोपीचंद एकेडमी और जूनियर लेवल पे प्रकाश पादुकोण एकेडमी से निकलता है. तो सर ये जिससे इतने कंट्रीज बैडमिंटन खेलते हैं, सबका ऑब्वियसली एक अलग अलग स्टाइल होगा गेज करने का कि उनके हिसाब से क्या बेस्ट होगा. तो ऐसी कुछ कंट्रीज होती हैं जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव बैडमिंटन खेलती हैं, वही तो. कुछ थोड़ा रैली बेस्ड बैडमिंटन खेलते हैं. इसमें इंडिया कौन से उसमें आता है? इंडिया प्लेज अ मिक्सचर ऑफ बैडमिंटन. पहले हमारे इतना पावर बैडमिंटन नहीं होता था. प्लेयर्स डिफेंसिव प्लेयर्स ज्यादा होते थे जो रैली करके जीतने के. बट सर एक सेकंड मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा. मैं जानना चाह रहा हूँ कितने स्टाइल के गेम होते हैं, जैसे आप बता रहे हो पावर. यूजुअली आपको अच्छा वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो यू नीड टू बी एबल टू कूप अप टू ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर. आप रैली गेम भी खेलना पड़ेगा, स्पीड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मैशिंग में बाहर भी चाहिए. बट पहले इंडियन प्लेयर्स इतना पावर गेम नहीं खेलते थे. बट लास्ट 10 years से प्रोफेशनल कोचिंग स्टार्ट हुई है, लॉट ऑफ पावर गेम हैज कम. So if you see Satvik Reddy smashing, I think he's the hardest smasher in the world right now. Okay. And sir, जैसे if I ask you to name like the best player ever, See, मतलब like overall, like I'm आप talking जब about बड़े not हो just रहे थे like तो a- किसको yeah, देख yeah. रहे थे? see, our times we only looked up to Mr. Prakash Padukone. He Okay. was the first player to win the All England Championship, World Championship. He is truly the greatest player India has ever had. And internationally And अगर like बात करें- globally Globally, someone who I really loved was Lee Chong-wei. He just retired a few years back. He was good. A Chinese player called Lin Dan. More because he was a left-handed player as well. I'm a lefty. So he was someone I really followed. Awesome, wonderful player. So sir, like बैडमिंटन में भी एक लेफ्टी वाला एडवांटेज होता है क्या थोड़ा? लाइक टेनिस Advantage में नहीं आई होता नो है, क्या होता होता है है? थोड़ा. आपको लेफ्टी प्लेयर्स कम मिलते हैं. हाँ. It's more of a surprise for you when you play Yeah, lefty. तो थोड़ा एडवांटेज होता है थोड़ा सा कि अपोनेंट्स को लेफ्टी रीड करने में टाइम लग जाएगा. थोड़ा सा टाइम लगता है आपको उसको गेज करने में कि नए स्ट्रोक्स है, नया हैंड है. बाकी इतना मेजर कुछ नहीं. थ्रूआउट लाइक 30 years लॉन्ग करियर आपने कभी लाइक एक इंजरी होती है जो कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को उसका करियर खत्म कर सकती है या फिर मेंटली भी आपको डाउन कर सकती है? आपके करियर में कुछ ऐसी See, लॉन्ग I've टर्म इंजरी? already gone through 3 surgeries in my different legs. 2 knee surgeries, both my ACL were torn. Really? So I got 2 ACL reconstructed left, right, दोनों में. हाँ. And my right leg is Achilles tendon was also fully So gone. was it a full tear or a partial tear? full tear, reconstruct हुए दोनों. ACL, Oh. left, right, दोनों. सेम पिंच करना तेरा भी तो एक So I ऐसे. got मेरा my- भी एक गया हुआ है. So I got my first Achilles tendon surgery done in 2011, just after I won my National Games medal in 2010. उसके बाद सर क्या रहा, एक मेंटल प्रोसेस क्या रहता है मुझे हाँ, थोड़ा like बताइए comeback ना. कैसे आप शुरू के 3 महीने तो आपको ये लगता है कि आप शायद खेल लाइफ में कभी खेल ही नहीं पाओगे. Exactly. And being on bed for 3-4 months, वो सबसे frustrating time होता है. Yes. You gain weight, you know, get irritated very fast. You know भाई आपका फ्यूचर ही नहीं है कि मे बी आप कभी खेल नहीं पाओगे. Then once you start walking, थोड़ा mentally tough होना पड़ता है. Hmm. The rehab process is the most important. Hmm. Post surgery, जब आपकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो 3-4 महीने 6 महीने आपको काफी पेन सहन करना पड़ेगा, मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा। So it took me about 10-11 months to be back on court. सो बेसिकली पहले आपका राइट नी का हुआ Right Achilles tendon, एंड उसके बाद आपका ACL हुआ। ACL 2018 and 2023, left and right. जब सेकेंड टाइम ACL हुआ तब वापस से लगा कि अरे यार वापस से वही प्रोसेस, वापस से हाँ, वही but सब तब चीज। तक एक बार I'd gone through one ACL injury, so I हाँ। was more kind of mentally prepared हाँ कि ठीक है, अब जो है, I know I'll be back on court, it'll take some time, साल भर लगेगा, but I know मैं वापस खेल पाऊंगा, I'll be back to my passion again. ओके। It was more kind of, easy for me to do it. तो सर बेसिकली यंग किड्स जो कि इनिशियली अभी अपना टूर्नामेंट चालू कर रहे हैं, अच्छा अभी बहुत ज्यादा इंजरी आजकल यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल और जो भी कंजम्पशन है। See, sports injury is not because of the lifestyle. It's more because या तो आप उतनी मसल स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप ढंग से वार्म अप्स और आफ्टर स्पॉट स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। ये सब आई गॉट माय फर्स्ट इंजरी व्हेन आई वाज अराउंड 35. So that was more of a fatigue injury. After playing for 20-22 years, the body kind of gave up. And with age क्या होता है, हम ट्रेनिंग कम करते पर खेलना उतना ही रखते हैं once you cross 30. तो मेरी इंजरी was more because of my own habits की आपने ट्रेनिंग कम कर दी, मसल स्ट्रेंथ कम हो गई, so it took a toll on my knee. यंगस्टर्स में इंजरी इसलिए होती है कि कितनी बार आप बहुत मेहनत करने के बाद बॉडी को स्ट्रेस नहीं करते हैं या वार्म अप्स नहीं करते हैं, स्टिफ बॉडी में खेलते हो तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्री वार्म अप एंड पोस्ट मैच स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर एट द सेम टाइम सर मेरा ये भी बिलीव है जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे रबर मैट्स लगे हुए हैं कई जगह, मैक्सिमम जगह जहाँ पे बैडमिंटन हो रहा है दैट इज बिन प्लेइंग ऑन लाइक प्लेड कंक्रीट, एकदम हार्ड कंक्रीट। पर कंक्रीट आज से 15-20 साल अब कंक्रीट पे नहीं होता, अब नहीं होता। 90% प्लेस यू विल फाइंड दीज मैट्स एंड 10% वुडन कोर्ट्स है। ओके। और नेशनल्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो बिना मैट के आप ऑर्गेनाइज नहीं हाँ आई थिंक जब से ग्रो होने लग गया है थोड़ा एग्जैक्टली स्मार्ट हो गए लोग चेंज हो कि गई यार चीज है। इस पे नहीं खेलना यूजुअली चाहिए। पहले हर जगह मैं देख रहा था स्कूल्स हुए जहाँ पे बच्चा सीख हाँ। रहा है वहाँ पे कंक्रीट पे खेला जा प्लस रहा है। सीमेंट पे खेलना कितना लाइक शूज रोज घिसे हैं, उसका हाँ। अलग खर्चा। बट लाइक स्पेसिफिकली ऑन नीज या knees पे बहुत क्योंकि बैडमिंटन बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट है। हाँ। आप जंप्स लेते हो, आप डाइविंग करते हो, तो सीमेंट पे ऑब्वियसली आपके नीज पे और सो ankle व्हाट पे आर योर गो टू, मतलब ऐसी कौन सी 2-3 बातें जो कि आप यंगस्टर्स को बोलोगे कि इस चीज पे ध्यान दो टू हैव अ लॉन्गर करियर? मतलब ठीक है इंजरी तो किसी को भी हो सकती है पर थोड़ा बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्या? कोई पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खेलने के बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स सारे मसल्स की लोअर बॉडी की प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। बैक इंजरीज बहुत कॉमन है बैडमिंटन में, बिकॉज यू लॉट ऑफ मूवमेंट ओवर हेड साइड, बैक इन साइड, तो उसके लिए भी स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैक इंजरीज प्रिवेंट करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट वाटर इनटेक? So that is a part of nutrition. न्यूट्रिशन तो प्रॉपर रखना ही पर पड़ेगा सर मेरे को आपको। लगता है ना कई बार लोग इस चीज को बहुत ज्यादा भूल जाते थे कि हमारी बॉडी मैक्सिमम पानी से बनी हुई है और हमें वाटर इनटेक रखना है ताकि हमारी मसल्स उतनी ही ज्यादा अच्छी रहें। एग्जैक्टली सी अपने यहाँ पे न्यूट्रिशन अवेयरनेस इज अ बिग प्रॉब्लम। बच्चे सिर्फ पानी पीते हैं, आपको थोड़ा बहुत सॉल्ट्स भी टेक इन करना है, शुगर भी टेक इन Yes. करना है। सिर्फ पानी पी के भी आपकी रिकवरी नहीं होगी। हाँ दैट्स व्हाई किड्स की आप थोड़ा एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट रखें बैग में। कभी आपको लगता है आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल डाल के पी लें, तो आपको रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ओके। सो एंड सर लाइक आई वांट टू नो लाइक आपके ऐसे प्लेइंग करियर के टाइम आपके लाइक सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स या मैचेस या अपोनेंट्स कौन कौन थे, क्या था? See, I was lucky enough, जब मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया था तो उस समय सिद्धार्थ जैन करके एक प्लेयर था from Devas, played with us and he was the national champion that time. ओके, So playing against him was very memorable. कौन जीता था मैच? Obviously he won. Irish. He beat me hands down, something what 15-5 or 15-2. But उसके बाद खेले ऐसे हारेंगे अपन आज वैसे। And the most memorable match was the day we won our West Zone Championship. ओके। West Zone is usually dominated by Maharashtra. So team championship होता है and MPA last time जीता था 1976 में. उसके बाद it won in 2010 when I was the captain after 36 years. तो लाइक सर वो कैसा एनवायरनमेंट था उस टाइम? We were very happy. We defeated Chhattisgarh in the finals. Goa में था tournament. So we won 3-2 against Chhattisgarh. And there was this guy called Mr. Sanjay Mishra, captain of Chhattisgarh that time, who's right now the BIS secretary. ओके। तो डिफीट पहले तो एमपी छत्तीसगढ़ सेम था, तो हाँ। काफी साल तो वो भी हमारे साथ ही खेले। तो सर ऐसे कब लाइक
कैसा लगा था आपको जब वो उस साइड चले गए ऐसे? See, he was a very respectable guy. He was a state champion for 7-8 years. बहुत अच्छे इंसान है. So winning against him was very, memorable for us. But lot of respect for him. मतलब बहुत ही अच्छा moment था. But very, cozy and good environment playing against them. सर बट बैडमिंटन के अलावा आपकी लाइफ में क्या है, मतलब इसके अलावा भी क्या चीज एज अ हॉबी या फिर एज एन आर्ट आप एंजॉय करते हो, चेरिश? मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में रहा हूँ हमेशा. हाँ आई बीन अवे फ्रॉम आर्ट. कभी इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट बहुत खेलते हैं हम लोग. हाँ. उसके आगे पहले तो खैर ग्राउंड्स वगैरह पे खेलते थे. आजकल तो टर्फ्स ही होते हैं खेलने के लिए. हाँ. वो है. आई हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स. अकेडमी में काफी टाइम चला जाता है मेरा. मॉर्निंग 7 to 12:30, देन 1:30 to 7 in the evening. So around 12 hours यही निकल जाते हैं. ओके. सो व्हाट्स नेक्स्ट एकेडमी वाइज, अभी क्या प्लान कर रहे हो? अब 3-4 साल में मेहनत करके काफी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं. So the next goal is we want a few kids to perform on the national level as well. So next 2-3 years we'll be focusing on kids who can at least put a mark on the national level, quarters तक पहुंचे at least, या top 16 में आए इंडिया में. तो सर जैसे ऑब्वियसली लाइक इसमें भी आपको थोड़ा स्काउटिंग का एक एस्पेक्ट होता होगा कि कोई बच्चे आपको ऐसे दिखते खेलते हुए, तो आप Obviously like what do you look for in a kid who's like just starting but wants to do something and you think कि हाँ he has when you the- see a kid playing in the court, you kind of see कि बच्चा कितना लड़के खेलना सीखता है, कितना डेडिकेटेड ट्रेनिंग करता है. See, खेलना हर बच्चे को अच्छा लगता है. When you start training, then you realize कि कौन सा बच्चा एक्चुअल में मेहनत करना चाहता है. फिजिकल वर्कआउट, वर्किंग आउट आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर आप कितना टाइम दे सकते हो. See, we as a team we believe in 4S, skill, stamina, speed and strength for badminton. ये 4 मेजर चीजें हैं. आपको 3 गेम सस्टेन करने का स्टैमिना चाहिए कि आप तीनों गेम एक ही स्पीड खेल सको. आपको स्पीड चाहिए कि आप अपोनेंट को ओवर पावर करके स्ट्रोक्स खेल सको. आपको स्ट्रेंथ चाहिए कि आप स्मैशेस मार के शटल फिनिश कर सको. और दूसरा एक लास्ट एस्पेक्ट आता है स्किल्स पे, कि आप में कितना वेरिएशन ला सकते हो अपने गेम में, आप में कितना स्किल है. तो ये 4 एसेस वी थिंक आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर. वो कैसे सब में अपने आप को वो करता है. और किसी प्लेयर में स्किल लेवल हाई होता है, किसी का स्ट्रेंथ लेवल हाई होता है. तो आप उसी के बेस उसी अराउंड उसके गेम डेवलप करते हो और बाकी 3 स्किल्स स्लोली आप उसके साथ बढ़ाने की कोशिश करते हो. मैं Guys, उनकी this is सब to है। see podcast में कौन ये ले, बेटर है. हम एकदम भी चिराग, हम एकदम तेरे को टारगेट नहीं करेंगे. मैं करता हूँ सब. ठीक ठीक है. ओके. बहुत बढ़िया. तो रखना आगे आगे. यस भाई. ओके ओके ठीक है, मतलब प्रॉपर फुल ऑन खेलना है ना. तू चल, तू ठीक क्या है। फुल ऑन खेलेगा? Yes! I thought it was there. I thought it was there. Everything sports podcast. Yes! Sorry भाई, sorry. Good job, good job. Come on, let's go. क्या साइड चेंज करना है नहीं? अच्छा. Mine. Hey! Yes! ओए, nice चिराग, nice. नहीं, अच्छा था. पॉइंट मानेंगे हम? नहीं. हाँ भाई. Out. कोई नहीं क्लोज था. Yes. ओए! भाई अमेजिंग. Dude, मेरे को 1 पॉइंट इससे चाहिए. भाई ये क्या खेल रहे हैं यार दोनों यार. ACL वापस नहीं टूट गया होता. उसका. अरे यार. तू भाई 12. उधर जाऊं. 12 पॉइंट का गेम है, डूड है ना. शिट. सोन बॉस, अगर उधर दी ना कॉर्नर. कम ऑन. उनके 6. Come on guys, 6 all, come on.
यस क्यों नहीं, कोई नहीं भाई, जिनको आता ही नहीं है ना उनसे अपन कभी कभी हो जाते कंफ्यूज। यस अरे अरे हमारा जो स्ट्रैटेजी था वही करना है, हमें सेवा से चिराग पड़े करना है, आगे देखना ना। ये क्रेजी खेल रहे दोनों यार। थोड़ी तो इज्जत रख ले भाई, थोड़ी तो इज्जत रख ले। कोई नहीं भाई, कोई रहम मत करना इस पे, मैं तेरे को बता रहा हूँ। नहीं यस यार मैंने इतना क्विक मारा था भाई यार। सॉरी तेरा है सॉरी। यस मैं चाहता हूं मैं नेशनल एंथम बजना चाहिए जैसे ये वाला पॉइंट गिरा था। ग्रेट गेम भाई। तो रुक जा बेटा। बच्चों से खेलने के बाद गुड्डों को हराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मिट्टी ले आ, मिट्टी मारते हैं। क्या होता है? अबे तू मिट्टी कहाँ से तेरे रेसिज्म से बेटर था, तू बोल रहा था ब्लैक को टारगेट कर साले। वो टेक्निकल गेम खेलेंगे सर, वो टेक्निकल गेम है, मतलब अच्छा कर उनको बहुत अपन को टेक्निकल का टीवी नहीं हारा है। मतलब बस बोला वो स्ट्रॉन्ग गेम नहीं खेलेंगे, वो बहुत टेक्निकल गेम खेलेंगे। तो उनको भगा वो डायरेक्शन बच्चे भी करेंगे ना, तो भी अभी 12 बज रहा है। राइट लेफ्ट लेट्स क्या तो ये बाहर हुआ या नहीं? नहीं सिंगल है, सिंगल स्पोर्ट है ये तो हम पूरा- मारेंगे तो बाहर है। नहीं आप इसके बाहर पूरा आउट है, उस लाइन के बाहर पूरा आउट है, सबके लिए सेम है। ये राइट है, आप मारोगे तो भी राइट है। तो अब सर्व उनकी है ना। हम सिंगल्स के रूल से खेल रहे हैं, सिंगल्स कोर्ट खेल रहे हैं। उनका डबल स्कोर कर देते। क्या हमारा पॉइंट है? हम जीते। ओ ओ भाई एक लेंगे, रुक जा, लेंगे भाई अब। 2-1 You cannot play. He has to play when I've served to. तो ये रही भाई यार, तूने बोला लेफ्ट राइट यार। तो अब एक सेकंड, लेफ्ट राइट या आगे पीछे? तो अभी तेरे को रिसीव करना है, तो तू पीछे। On the good side. अब मैं पीछे हूँ। Right. ये पीक मेल परफॉर्मेंस था। One more golden point. Well played. Well played, Chirag. थैंक So guys, this is our game at Duke Academy. कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेयर नेचुरली गिफ्टेड है बट वो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। हाँ। कुछ होते हैं जो कि नेचुरली गिफ्टेड नहीं है बट दे वर्क सो हार्ड ऑन देयर गेम, ऑन देयर टेक्निक की। See, I would want a student who's not as gifted, Yeah. but a student who wants to work hard. Yeah, Dedication. yeah. कि आप स्किल के नाम पे नेशनल
टैलेंट के नाम पे आप एक लेवल तक खेल लोगे, पर जो लड़का दिन रात 10 घंटे मेहनत करके खेल रहा है, he will someday definitely overpower you, no matter आप कितने भी टैलेंट So मतलब it's more of a rabbit and turtle race वाला चीज. Exactly. Like एक कंट्रोवर्शियल चीज है. I mean हम लोग स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट अभी करते हैं. On the camera, off the camera, see, I have also played sports all my life. He's also had an ACL injury. Yes, that thing we have in common. Almost all his life. But not all my life. एक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे है. एक पॉलिटिक्स है जो कि उस यूनियन के जो ग्रैंड मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं उन बच्चों को जिनके साथ उनका अच्छा एक रिलेशन And है. that's every sport, not just badminton. not just It's every badminton. sport. I want you to tell us कि बैडमिंटन की लाइफ में इंडिया में ये चीज है और किस लेवल से अच्छे प्लेयर्स को इफेक्ट कर रही है. सी आज से 15 साल पहले शायद ये सब बहुत ज्यादा था, किस टर्म में? एवरी टर्म में. जैसे आज मैं कोई टूर्नामेंट करा रहा हूँ जैसे, तो दे आर 3 गुड प्लेयर्स, आई नो 2 प्लेयर्स जाएंगे नेशनल लेवल के टूर्नामेंट के लिए. तो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू वाज द नंबर 1 नंबर 2 है उनको एक ही हाफ में डाल के उनका सेमीफाइनल करवा दिया, और जो उनका बच्चा है उसको एक हाफ क्लियर देख के फाइनल पहुंचवाया ताकि वो एटलीस्ट नेशनल चला जाए. ओके. अब ये सब इसलिए डिफिकल्ट हो गया है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स फॉर्मुलेट कर दिए हैं. रैंकिंग्स आपकी जो आती हैं, आपके जो ड्रॉज बनते हैं वो कंप्यूटर से बनते हैं. कोई भी मैनुअल काम नहीं है. हाँ जी. ओके. तो यू पुट द टॉप सीड इन द सेकंड ईयर, बाकी सारे प्लेयर्स कौन किससे खेलेगा वो कंप्यूटर डिसाइड करता है. तो मतलब ट्रांसपेरेंट हो गई है चीजें. Yeah. तो पिछले 5-7 साल में ये चीजें बहुत अच्छे से हो गई हैं. थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स अभी भी है, दैट यू कैन नॉट रूल आउट. सी क्या होता है, ये बाहर भी होता है, बाहर में पता नहीं पड़ता कि हम वहाँ रहते हैं. एग्जैक्टली. तो यार यहाँ पे कम हो गया है बहुत ज्यादा कि अब उतना इंटरफेरेंस नहीं है लोगों का. मैचेस के रिजल्ट्स ऑनलाइन आते हैं. रेफरीज अब हर टूर्नामेंट कराने वाले को प्रॉपर रेफरी रखने हैं. जैसे स्टेट चैंपियनशिप में BI अप्रूव्ड, MPBA अप्रूव्ड रेफरीज ही रेफरशिप करेंगे. तो चीटिंग लेवल भी काफी कम हो गया. बैडमिंटन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था आज से कुछ साल पहले तक, एज फ्रॉड का. 15 साल का बच्चा है, हाँ, 12 साल का अपना सर्टिफिकेट लेके आ गया और अंडर 12 में खेल के जीत गया. और ये सारे स्पोर्ट्स में हो रहा है. ये सारे स्पोर्ट्स में हो रहा है. मैं बैडमिंटन से मैंने वहां बहुत देखा. एंड स्टेट्स जहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल जाना था, छोटे स्टेट्स, वहां से बहुत ज्यादा 15 साल का लड़का 12 साल का एज सर्टिफिकेट लेके नेशनल्स में आया और खेल लिया सेमीफाइनल फाइनल. बट लास्ट 7-8 इयर्स कुछ स्टेट लेवल्स ने कंपलसरी कर दिए हैं. जैसे आपका आधार तो आ ही गया, उसके सिवा आजकल एज वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट भी आ गया है. क्या है ये? A doctor does your bone Physical test age and all. पता तो चला. they find out the right age of the child. उसका साल भर का ऊपर नीचे रहता है. But that is also compulsory if a objection comes against the kid. सर जैसे आप बता रहे हो ये एज फ्रॉड एक बहुत बड़ा चीटिंग का वो होता है, और क्या वेज में होती है बैडमिंटन में ऐसे चीट? लाइक जैसे क्रिकेट में अपन देखते हैं कि सैंड पेपर वाला जैसे इंसिडेंट हो गया या कुछ हो गया, बैडमिंटन में इतना इस सब में इतना पॉसिबिलिटी शटल कम की है. फ्लाइट स्लो फास्ट अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते. द अंपायर डिसाइड्स शटल किस फ्लाइट की है. प्लेयर्स कैन नॉट चेंज द फ्लाइट. देयर इज नो वे ऑफ हैम्परिंग विद द. नो बैडमिंटन में कुछ ऐसा नहीं, रैकेट में कुछ एक्स्ट्रा लगा वगैरह नहीं. कुछ भी इसमें मतलब हाँ, इसमें थोड़ा क्योंकि डिस्टेंट स्पोर्ट है ना, इट्स लाइक क्लियर. मैं am trying to see मैं जीत कैसे सकता हूँ आज. बैडमिंटन में इतना स्कोप नहीं है इन चीजों का. हाँ. मैनिपुलेशन इतना नहीं होता है. एक तो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, Yeah. दो लोग खेल रहे हैं. हाँ. There's lots of confusion. इतना confusion नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है. दो लोग क्लियर खेल रहे हैं. रेफरी जो अंपायर होता है, चेयर अंपायर इज वेरी क्लोज टू द कोर्ट. आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी चेयर लगा हुआ है. चेयर हाँ. अंपायर बहुत पास में बैठता है, तो आपको ज्यादा स्कोप है. एक एवरेज बैडमिंटन प्लेयर सी हर स्पोर्ट में ऐसा होता है कि कुछ लोग टॉप पे जाते हैं. बैडमिंटन में जैसा आप मुझे बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देवर लाइक मोर देन 1000 प्लेयर्स. नॉट 1000 प्लेयर्स, बट एक एज ग्रुप में जैसे अगर आप अंडर 13 की बात करेंगे तो अंडर 13 का अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट कराएंगे तो उस एज ग्रुप में एटलीस्ट 100-125 प्लेयर्स की एंट्री आती है. So one single event. हाँ. But this will to keep increasing ना वैसे. This is that's a lot. It is ideal ना कि 1000 लोग एक ये उसमें. But एक see, my age point group का is कि बैडमिंटन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, बिकॉज सी इंडिया में बैडमिंटन को वी लव इट बैडमिंटन, Yeah. राइट. हम नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे अब आ भी रहे शाइन हैं. करने लगे. बिल्कुल. तो एक ऐसा स्पोर्ट जहां पे मैक्स टू मैक्स
वन ऑन वन खेला जा सकता है या फिर डबल्स खेला जा सकता है, वहां पे कई लोगों के ऐसे करियर्स हैं जो कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए आप कौन सी 2-4 बातें बोल सकते हो टू मोटिवेट देम कि ठीक है यार, नहीं हुआ कोई बात नहीं, यू ट्राइड, मतलब क्या चल रहा है? ऑब्वियसली कोई भी टूर्नामेंट होगा एक ही बंदा टूर्नामेंट जीतेगा, हाँ बाकी सब लोग टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। बट यू नो आपका अगर पैशन है आप उसको फॉलो करो, जितना खेल सकते हो, जितना आप मेहनत कर सकते हो। एवरीबॉडी इज अ सर्टेन लेवल जहां तक आप खेल सकते हो। सी मैं डबल्स में 5 बार स्टेट जीता, सिंगल्स कभी नहीं जीत पाया। बेस्ट आई कुछ मैनेज वाज प्लेइंग सेमीफाइनल एट द स्टेट लेवल एट सिंगल्स। सो यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज कि भाई ये मेरी लिमिट है, बट एटलीस्ट आप उसको जितना पुश कर सकते हो पुश करो। सब लोग ऑब्वियसली वर्ल्ड नंबर 1, स्टेट नंबर 1, नेशनल नंबर 1 नहीं बन सकते, बट अगर आपका पैशन है, जब तक आप फॉलो कर सकते हो उसको करो। But do you tell like young kids nowadays, especially, ki, like to have some backups also, because it is an industry where, like, let's say 1 out of कुछ भी हो 1,000 सकता है। people make See, it. backups तो obviously you keep. Plus parents also understand this very well. उनको भी पता है कि अगर 17-18 साल तक बच्चा नेशनल लेवल पे नहीं पहुंचा, तो उसके बाद गेम कंटिन्यू कराने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं बचता। फिर वो सिर्फ फिटनेस के लिए या कैजुअली खेलते हैं। Then they turn to studies and other careers. सर बट जैसे अब चिराग इज, आई एम अज्यूमिंग यू आर 25 or 26. 25. You're 25. I'm 26. I would like to say that on camera. तो हम अगर हमारा करियर आज से बहुत चालू करते हैं stupid question तो होने वाला है ये। अगर हम हमारा करियर आज से चालू करते हैं तो आपको क्या लगता है हम कहाँ तक जा सकते हैं? See, right now I haven't seen you guys play, but starting a career in badminton is not possible. You can just play This casually, is play for before him fitness. watching us play. आप तो fitness के imagine लिए क्या खेल सकते होगा। हो। सर ये बहुत ब्रूटल आंसर था। आप बोल सकते हो कि अगर मेहनत करोगे, अगर हार्ड वर्क करोगे तो मैं तुम्हें नेशनल्स खिला सकता हूँ। सर ये तो National एथलीट standard था किसी भी, के हाथ इसका में तो नहीं हो सकता है ना, ये तो एथलीट था भी ऐसे पहले। नहीं बट उसके लिए ऑफ क्या कोर्स होता है? लाइक ये I don't know, मैं आपको भी अपने आगे अंडर 13, अंडर 15 के बच्चों के साथ खेलने के लिए बोल सकता हूँ। हाँ वो बच्चे 2-2 साल से खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेलें, यू सी हाउ दे प्ले, हाँ एंड वो लोग अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल या मैक्सिमम स्टेट लेवल तक खेल रहे हैं। तो नेशनल लेवल तक मेंस में पहुंचने के लिए हाँ, उनको that's कम से कम 10 साल और लग रहे हैं अगर वो मेहनत करेंगे। That's a So- long journey. Yes. That's a very long journey because I know tennis में there was this Yeah. coach in my school. I'm not going to name him. नहीं नहीं यार, उन्होंने please, मुझे ये बोला please. कि if you start playing tennis right now, मैं within 6 months national खिला दूंगा। नहीं हो See, सकता। टेनिस का उस समय मैं don't know, आप अगर आप 26 के हो तो हाँ। आपकी स्कूलिंग खत्म हुआ है एटलीस्ट 8 years हो। Yes, yes, So that time tennis was also a very remote sport. yes. अब टेनिस की काफी फॉलोइंग हाँ, बढ़ गई है। हाँ। लास्ट 4-5 years टेनिस काफी बड़ा है। तो अब आपको टेनिस में भी नेशनल हाँ। खेलने के लिए कम से कम 3 साल 2.5 साल 3 साल Yeah, चाहिए। true, true. तो उस समय शायद इतना हाँ नहीं तो competition उस नहीं टाइम पे कुछ भी नहीं था। As someone who has played tennis in school, हाँ, नहीं it's होता not an है, easy ऐसे sport. I've seen amazing players, bro. हाँ। but no sport वो is भी नहीं easy. पहुंच हाँ। पाते हैं। Like, Yeah, but अगर actually आप- you are right. उस टाइम पे tennis was such a new game. अच्छा, apart from like tennis, I think there was this weird sport yeah, like Squash? no, not squash. table कुछ था, but anyway, I'm forgetting the name. But yeah, that makes sense. So I think Chirag, it's time to see. And sir बताएंगे हमें, do we have a career in this कि sport हम or कितने not? से हारेंगे। देखते हैं, we'll see. थोड़ा confidence रखना है खुद पे. Yeah. So guys, at Duke Academy, we'll be having a match. हमारे पास कुछ हैं players हैं जिनके साथ हम We have an under 13 player, हाँ Arav, हाँ. and an under 15 player, Vedant. And कितने साल से खेल रही हैं हम थोड़ा ऑन कैमरा हम जानना चाह रहे हैं. Arav has been playing for the last 9-10 months. Okay. regularly. And Vedant has been playing for 2.5 years. 2.5 years. Arav Okay. is in the green shirt, Yeah. and Vedant is in the black. Okay, fine. So let's have a match. और इसके बाद हम चाहेंगे कि एक मैच हम आपके साथ भी खेलें. Sure. So we'll have a 2-2 point game. Chirag, so like, how do you want to do this? Do you want to pick one, or Listen, it's like do you it want doesn't it 2v2? matter, I will lose equally. नहीं but एक बात बता, 2v2 करना है या फिर mix करना है? You pick Let's, one, I'll pick one, and let's have a I match. think let's start with 2v2, no? So like हम दो और वो दो. हाँ. Okay, fine. Yeah. Fair enough? Yeah. Yeah. चलो, let's do this. But sir के साथ 2 versus 1 होगा ना? हाँ, 2 versus 1. Done. That is And आप एक सेकंड, आपका dominant hand कौन सा है? right. तो तो left से खेलना पड़ेगा यार. नहीं, you told us कि आपका left, you are lefty, right? तो आप अपना right hand use करना फिर हमारे against. यार दो के If- साथ right hand difficult होता है. I've never played with my right hand. अच्छा, okay, then we'll play with left only. चलो, nice. So let's see guys, थोड़ा सा comments में यहीं पे pause करो और पहले अपनी prediction डालो and let's see. और उसके बाद अगर सर बता सकते हैं हमें कि सर किसको अपने अंडर लेना चाहेंगे अकेडमी में. ठीक है? मैं compete ही नहीं कर रहा हूँ इस चीज के So let's do this. So we'll start the exhibition match. On my left, Chirag and Rishabh.
On my right, Arav and Vedant. Let's have a toss. Chirag and Rishabh won the toss and elected to serve. Now, cross serve, आपको receive करना. Love all, play. सॉरी भाई, कोई नहीं, वार्म अप। चिराग आपको रिसीव करना है. ऋषभ है ये पीछे था। आरव, यू आर नॉट सपोज्ड टू कोई स्मैश. नहीं, ठीक है करेंगे। Yours. लव. कोई नहीं, पहले से बेटर था, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एक हफ्ते में नेशनल में। चिराग पीछे. अच्छा, For first game point, love. Five points over. Change side. Second थोड़ा game. और प्रैक्टिस करके आना चाहिए था ऋषभ। Smashes नहीं मारने. अब देख, अब मैं कैमरे पे अब जीतूंगा। अब डन है भाई। Point, love. गुड ट्राई। See what I was trying there. बस सर्विस नेट में कर देख. Yes भाई, पॉइंट मिल गया। Points 1, 3. मेरी है। Good one. हाय, चिराग to serve. 2-4. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को नहीं करनी तो वो ले ले। This is a short serve. उनको पता नहीं था अच्छा, वापस. sorry। You got to serve ahead of this line. ये line के पीछे आना चाहिए सर्विस. ठीक है। तो पास आते जा रहे हैं। Set match. Shake hands. अमेजिंगली प्लेड। तू जल्दी हरवाना है क्या अपने को? भाई वो प्रोस के लिए एडवांटेज होता है। बोल रहा हूँ मिट्टी मारते हैं। किसको एक सेकंड? ब्लैक सो रेसिस्ट ब्रो। Yes. गाइस, ऋषभ इज बीइंग अ रेसिस्ट। देखो, रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा होता है। अब मैं पीछे हूँ। सर्विस वही करेंगे. सीधा. Stop targeting. और बेइज्जती करवाना चाहेंगे हम अपनी। कौन सी सिटी लेवल है?
ओए 1-0 बढ़िया खेला ना। अरे ये बहुत खेलता है यार, पहले खेलता था, इसकी इंजरी के बाद से नहीं खेलता। कम ऑन यार आरव कम ऑन 3-0 Come on. Good shot. The two guys you're Oi. seeing perform right now, 4-2. play right now, are both Indore City level players and have played in multiple Indore City level tournaments as well. With Rishabh, our Come on, co-host, game. refereeing the match. Come on, buddy. Oi! Good point, yaar. Good point. Okay guys, so as you saw, हमने बहुत बढ़िया मैच खेला and unfortunately ऋषभ जीत गया है, तो अपन इसकी बात कभी नहीं करेंगे अब। पर सर कैसा लगा आपको पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस, कैसा लगा हमारा प्लेइंग स्टाइल कुछ कमेंट हमारे लिए नोट्स क्या है and anything about the two amazing youngsters who See, played with ऋषभ को us? देख के लगता है he's played some racket sport for sure. कोई ना कोई racket sport तो खेला है उसने. You need a lot of work. Yes. So I hope I suggest you once a week, twice a week, whatever possible, come and play at Duke. Hmm. I'll train you myself. Oh, Then we no, can challenge. फिर तो ठीक है, We can challenge फिर तो Rishabh ठीक है after भाई। 2 months. Dude, challenge. मेरा challenge. Part 2 coming soon. But anyways, like you have amazing, like मेरे को जितना भी यहाँ पे setup लग रहा है ना, amazing Yeah. floor, सब Thank you कुछ so काफी much. अच्छा है, काफी ज़्यादा width है, space है. Now we've And- tried to cater to every need of a sports person, of a badminton player. हाँ. We just changed these brand new courts. We put up new courts in 2019. In 2023, we got 4 new courts done again. ताकि courts proper condition में रहे. We have the training area there, जहाँ पे बच्चों के लिए पूरा आपको workout करने की जगह with tires, hurdles, Yeah. जो भी strengthening होती है, agility training होती है. So we have complete setup. We have a gym as well. Yeah. Which is not for the kids, but the adults, the boys playing above 19, 18 can use. Amazing. But it was great. Special thank you to you, sir, and Thank you so Vedant and Arav, who were amazing. And yes, thank you so much for watching this special episode. And if you like it and comment enough, we'll hopefully do more of these. So thank you so much for watching, liking, and subscribing. See you next week. Bye. Bye. Thank you.